ओके, सो क्विकली हमने जो लास्ट किया था उसका एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेंगे, सो दैट अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर कुछ और अलग से पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. So we have just started with the chapter with the difference between living and non-living. Okay. So living organisms की क्या specific characteristics होती हैं वो हमने देखी. They have movement. They can move from one place to another. Okay. And because वो living है इसीलिए they have some life processes. ऐसे process which are necessary for maintaining the survival of an individual. So there are many life processes: nutrition, respiration, transportation, excretion. Okay. And last session में हमने देखा था about न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, सो मैं दोनों ही कवर कर दूंगी. आई मीन आई विल बी कवरिंग द होल चैप्टर. जितना भी जिनके सिलेबस में नहीं है वो भी सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स हैं? ये सारा हमने देख लिया था. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रेस्पिरेशन. ओके, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ तक कोई भी डाउट्स? No, ma'am. No. Okay, so let us move with our chapter transportation. Now what do you mean by transport? What do you understand by transport? जब word आता है transport, quickly anybody? To transfer some things from one place to another. Okay, so generally when we say transport, it is to move something from one place to another. Okay, so यहाँ पे भी if you are moving any object from one place to another, that means you are transporting that object. Okay, so same thing is important for human beings, for plants also, because जो भी nutrition में food बन रहा है, that food has to reach to each and every cell. The gaseous exchange has to be taken place between each and every cell. The waste products are also needed to be removed by each and every cell. So ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, फूड है या फिर गैसेस है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, they need to be transported. Okay, so for transportation we have blood, arteries, veins and capillaries. Okay, so ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है ह्यूमन बींग्स में, उसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज वी आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड वी हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. एक तो बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में और सारे सेल्स they are organized into tissues to perform some specific function. Okay, so यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन टर्न कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. ओके, सो लेट अस सी क्या क्या है इनके अंदर, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स and what are the individual functions of each and every circulatory organs. Okay, so the first one we have is blood. Now see, blood आप देखोगे तो it acts as a main medium for the transport of food, oxygen and waste products. Okay, it is the only connective tissue which is in the fluid form. बाकी सारे connective tissues आप देखोगे तो they will be cellular. Okay, but this blood, it is a connective tissue which is in the fluid form. So this acts as a main medium for the transport of food, for the transport of oxygen and also for the removal of waste product. अब blood के constituents आप देखोगे, this is very important question, you should remember thoroughly, 1 mark में भी आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, so the components or the constituents of blood
are plasma and blood cells. Okay, two main constituents hai, plasma and the blood cells. Now plasma, when we say, it is separated from the blood cells. Mostly आपको कभी अगर ध्यान हो, यहाँ से कभी आपने देखा हो, तो as soon as the blood is drawn, आपके वेन में से ब्लड लिया जाता है ना जब चेकअप करने के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए अनसेटल छोड़ दो तो क्या होगा, प्लाज्मा पार्ट, जो फ्लूइड पार्ट है, वो क्लॉट बन के नीचे की ओर आ जाएगा. ठीक है. सो जो ऊपर का येलोइश पार्ट होगा, दैट वुड बी प्लाज्मा, एंड द लोअर पार्ट वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ ब्लड सेल्स. अब ब्लड सेल्स के अंदर भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स. वन इज रेड ब्लड सेल्स. जब हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, so the color is red because of the presence of the pigment. क्या है pigment? Hemoglobin. Hemoglobin, yes. So the red color pigment is hemoglobin. This is very very important because आप देखोगे आगे के पार्ट में भी हम इसको कवर करेंगे इस चीज को. So this hemoglobin particularly, it has the affinity for oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है. ओके. सो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी होता है. ओके. सो दैट इज व्हाई दिस हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट. रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. जैसे प्लांट्स के लीव्स में ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल से, उसी तरह से रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन से. इट इज अ पिगमेंट. Then another cells are white blood cells. Now white blood cells are colorless. That is why they have the name white. Okay, they don't have any specific color. Now this white blood cells, they are known as the soldiers of our body because they kill the harmful microorganisms that are entering into our body, and they kind of provide a defense to the body. Okay. सो नॉर्मली जब भी हमको कोई भी इन्फेक्शंस लगते हैं, या फिर अगर आपने देखा होगा कि आपको सपोज कोई इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, या फिर आपको कुछ लग गया और वो प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको इचिंग आ रहा है, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट इचिंग, सो सम दैट पार्ट बिकम्स स्वोलन अप एंड दैट एरिया बिकम्स लिटिल वार्म. सो वो इंडिकेट करता है दैट योर वाइट ब्लड सेल्स have rushed to that site. उस साइट पे वो चला गया है और वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने की कोशिश कर रहा है. ओके. So that is why they are known as the soldiers of our body. Even in case whenever you have fever or some disease conditions, and when you go for this blood test, जब आप blood test करोगे तो आप देखोगे तो हमेशा आपको WBCs जो है वो हाई मिलेंगे. ओके. So this indicates कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन को किल करने के लिए WBCs ने अपना नंबर बढ़ा दिया. ओके. So that is how they are important for protecting our body from the harmful microorganisms. Then the third type of blood cell is the platelets. Now ये जो platelets हैं, they are free moving and they are again very important in the clotting of blood. Mostly क्या होता है कि कभी blood ooze out होता है, then after a minute or so clot है वो बंद हो जाएगा. ओके. क्लॉट बन जाएगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा. ठीक है. सो दिस प्लेटलेट इज इंपॉर्टेंट सो दैट आपकी बॉडी में से एक्सेस ब्लड फ्लो नहीं हो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ब्लड फ्रॉम अवर बॉडी, है ना. तो उसके लिए क्या होगा, प्लेटलेट्स उस साइट पे चले जाएंगे और तुरंत एक प्लग बना देंगे. प्लग मीन्स तुरंत एक ऐसा क्लॉट बना देंगे ताकि बहुत ज्यादा ब्लड ना निकल पाए बाहर. Okay, so they are also again important for maintaining the concentration of blood. They don't allow the excess blood to flow out from the body. Okay, so ऐसे genetic disorder है जैसे कि हीमोफीलिया है. आपको अभी नहीं पता, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देयर इज दिस हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या होता है कि इनके जो प्लेटलेट्स होते हैं, एक फैक्टर होता है इसमें भी, वो फैक्टर मिसिंग होता है, तो जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो बहुत सारा ब्लड निकलता है. Okay, so that is a genetic disorder. Okay, then next we have is arteries.
नाउ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो आर्टरीज का काम क्या होता है कि जो प्योर ब्लड है, प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड, विच इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, सो हमको बाहर से मिलता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ही हमको चाहिए, एंड ऑक्सीजन शुड रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, सो दैट इज अवर प्योर ब्लड। सो ये जो प्योर ब्लड है वो लंग्स में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। ओके, वहां से वो प्योर होके आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा। सो दिस आर्टरीज दे सप्लाई प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, और द वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर थिक एंड दे डू नॉट हैव वॉल्स, वाल्स नहीं होते हैं इनमें। ठीक है, हम देखेंगे जब हार्ट का स्ट्रक्चर एंड ऑल एवरीथिंग, देन वी विल सी, विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट आल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज वेन्स। अब वेन्स जो आपको ब्लूइश कलर की दिखती हैं, आपके हाथों में दिखेंगी, पैरों में दिखेंगी, सुपरफिशियल जो ग्रीनिश कलर की दिखती हैं, दीज आर द वेन्स एंड दे कैरी इम्प्योर ब्लड। सो इम्प्योर ब्लड will be always from all the parts of the body. Okay, that means जो भी cellular waste products हैं वो पूरे body parts में बनेंगे, so that is why they are carrying impure blood. In other words, they are carrying deoxygenated blood. So हर एक body part से लेके heart तक जाएगी। ठीक है, और arteries में क्या होगा, from the heart to all the parts of the body. ठीक है, so often this kind of difference is asked, differentiate between arteries and veins, ऐसा पूछा जाता है। ओके, सो आपको ये बताना जरूरी है कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड, veins carry deoxygenated or impure blood. Second points will be arteries conduct the pure blood or the oxygenated blood from heart to all the parts of the body, whereas veins carry the blood from all parts of the body to the heart. Okay, so ये इस तरीके से आपको दो differences लिखने हैं आर्टरीज और वेन्स के लिए। देन वी हैव कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। सो ऑफ कोर्स दे आर वेरी फाइन, इनका जो डायमीटर होता है वो और भी ज्यादा पतला होता है, आर्टरीज और वेन्स के कंपैरिजन में भी और भी पतला होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिज बनाती है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक ब्रिज बनाती है, सो दैट जितना भी एक्सचेंज है, फूड का हो या वाटर का हो या ऑक्सीजन का हो या इवन कार्बन डाइऑक्साइड का हो, वो सब कैपिलरीज के थ्रू हो सके। So these are the narrow blood vessels. Narrow means they have a very little diameter because they have to, diffuse. They have to carry out the function for exchange of food also, for water also, and for gases also. So that is why उनका जो diameter होता है वो बहुत ही fine होता है, delicate होता है, narrow होता है। Okay, so it forms a bridge between arteries and veins. Then next we have is heart. Now human heart, if you can see, it is a muscular organ. Why muscular organ? क्यों muscular organ क्यों बोला गया है? देखो कनेक्ट करो थोड़ा सा, 9th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा था टिश्यूज का। Cardiac muscle. Yeah, because we have a specialized kind of muscles called cardiac muscles in the heart. Okay, so these muscles are constantly working, they are constantly pumping the blood. So therefore heart is a muscular organ. It pumps blood to all the parts of the body. हर एक body part में blood जाना important है, and that is how the heart, all the body parts are connected with the heart. We have arteries which are supplying, we have fine delicate arteries which support all the body parts, connected to all the body parts, so that हर एक में blood पहुंचे। Okay, so if you see the structure, अगर आप structure देखोगे हार्ट का, तो it has 4 chambers. Okay, 4 chambers में divided है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग organisms हैं, किसी में the heart is 2 chambered, किसी में 3 chambered, जैसे fishes हैं तो fishes में heart होता है 2 chambered, 1 auricle 1 ventricle। इसी तरीके से आप देखोगे तो reptiles हैं उनमें 3 chambered होता है। ठीक है, and then birds and mammals have 4 chambered heart. So जितने ज्यादा नंबर होते हैं चेम्बर्स के, उतना जो फंक्शन है वो एडवांस हो जाता है हार्ट का। ओके, सो दैट इज बाय मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वी हैव a very good
फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. सो 4 चेंबर्स है. अपर 2 चेंबर्स को हम बोलेंगे एट्रिया. ओके. एंड लोअर 2 चेंबर्स को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स. नाउ अगेन there is a difference that the ventricles will pump the blood to different organs, so its walls are thicker than the atria. यहाँ पे आप देखोगे तो वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है कि हार्ट में से जो भी ब्लड है उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना है, इसीलिए उसके जो वॉल्स होते हैं वो क्वाइट थिक होते हैं. एंड देन बिकॉज प्रेशर भी जनरेट होता है ना, इसीलिए. देन right and left chambers are separated by a septum. Septum is the membrane. Okay, so इस तरीके का ये आप देखोगे तो right and left this is separated by the septum. And again एक और advantage है ये separation का chambers में, वो ये है कि it prevents mixing of the blood. Now देखो हार्ट में 2 टाइप का ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है. ओके, सो ये जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका प्योर ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. सो इफ दिस गेट्स मिक्स्ड ना, तो इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर द बॉडी. सो टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर और oxygenated and deoxygenated blood, there is a septum. Now there is also the presence of valves. Now these valves ये एक नल की तरह होता है, जैसे आप ओपन क्लोज करते हो ना टैप को. सो ये वाल्व्स का काम भी यही होता है दैट दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों है तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए. ना ये ना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में जाना चाहिए, ना ही डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में जाना चाहिए. सो उसके लिए हमारे पास वाल्व्स है. वाल्व्स का क्या काम होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही फ्लो में ब्लड जाएगा, जिस फ्लो में आएगा उसी फ्लो में आगे जाएगा, नीचे जाएगा, बट उल्टा नहीं जाएगा. इट वोंट टेक अ रिवर्स. सो दैट इज व्हाई दीज वाल्व्स आर इम्पॉर्टेंट. सो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से देखना है, बहुत बार आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है. ओके, सो यू कैन सी दिस बिग वेसल aorta, then this vena cava, right atrium, left atrium, then pulmonary arteries and pulmonary veins. So pulmonary arteries, they are an exception. What exception? Anybody? They travel blood from body parts to heart. Pulmonary artery. Artery का काम क्या होता है देखो, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाना ब्लड. यस, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना. ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे तो पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड. देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर है ना, ये प्योर दिखा रहा है, प्योर ब्लड है. और ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर जो आपको दिखा रहा है ना, वो आपका इम्प्योर ब्लड है. तो एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी, पल्मोनरी आपको पता है किसके लिए यूज होता है? पल्मोनरी प्रीफिक्स है ये, लंग्स के लिए यूज होता है. ओके, पल्मोनरी इज यूज्ड फॉर मेडिकल टर्म्स में. अगर आप देखोगे, आई राइट इट फॉर यू. So, pulmonary is for lungs. So आप देखोगे कि ये लंग्स से आ रही है, इसीलिए this will be the only artery which would be carrying out the deoxygenated blood. Okay, and उसका दूसरा एक्सेप्शन क्या होगा? Pulmonary veins. So the only veins which carry out oxygenated blood. Okay, the only veins which carry out the oxygenated blood. So ये 2 exceptions हैं, pulmonary arteries और pulmonary veins. Okay, बाकी का easy है.
right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Then there is this wall called as septum, which is dividing the right and left chambers. Okay. Then okay. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ द हार्ट. अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है हम देखेंगे. ब्लड किस तरह से आता है, जाता है, एग्जिट करता है, वो देखना है अपने को. ओके, सो वी हैव टू सी बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. अभी आप देखोगे तो ह्यूमंस में, मैमल्स में स्पेशली वी हैव डबल सर्कुलेशन. ओके, सो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड है वो 2 बार आएगा, एक साइकिल में 2 बार आएगा, जिसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. ठीक है, क्या होता है डबल सर्कुलेशन में, देखेंगे किस तरह से 2 बार एंटर हो रहा है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट एट्रियम, दैट इज यू हैव टू सी दिस पार्ट. द लेफ्ट एट्रियम विल रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से प्योरीफाई होके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा एंड इट फ्लोज इनटू द पल्मोनरी वेन. जैसे मैंने आपको बताया, द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So the left atrium will relax, it will have oxygenated blood which is coming from the lungs, it will go into the pulmonary vein. Now what will happen next is contraction होगा. So जब जैसे ही atrium का contraction होगा, लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएगा, खुल जाएगा. लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल विल ओपन अप, इट विल एक्सपैंड एंड ब्लड उसके अंदर चला जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज it goes into the aorta. Okay, the big blood vessel here. So here you can see when the left ventricle contracts, the oxygenated blood will be pumped into the aorta, and aorta से, ये big blood vessel से, it will go to all the parts of the body. Okay, फिर after circulation क्या होगा, all the parts of the body will carry the deoxygenated blood. अब ये जो deoxygenated blood है ये एंटर करेगा राइट एट्रियम में. ओके, सो द deoxygenated blood from all the parts of the body will enter the right atrium through वेना केवा. यहाँ से ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, ऊपर की ओर है तो सुपीरियर बोलेंगे, नीचे की ओर होगा तो इंफीरियर बोलेंगे. ओके, सो ये सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड. अब वापस से वही बात होगी, राइट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट and the right ventricle will expand and blood उसमें flow हो जाएगा. Now again the right ventricle will contract and the blood will go to the lungs through pulmonary artery. अब वो lungs में चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, किससे, pulmonary artery से. ठीक है, so जैसे ही blood lungs में जाता है, carbon dioxide is removed, oxygen is absorbed, and again the oxygenated blood will enter into the left atrium. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा. 2 बार ब्लड आ रहा है, अलग अलग चेम्बर्स में आ रहा है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल. ये पूरा 2 प्रोसेस जो होता है ये 2 बार हो रहा है, बट साइकिल एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं डबल सर्कुलेशन में? जैसे देखो, आपको पूरा वर्किंग पता है, लेकिन आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए. पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, विच आर्टरीज विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और विच आर्टरीज विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस तरह से आपको ट्विस्टेड वे में भी क्वेश्चंस पता होने चाहिए. लेफ्ट एट्रियम के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, किसी भी तरह से यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग वन. सो एनी डाउट्स till now? No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, very good. So let us move ahead. Okay, so this is you can see यहाँ पे आपको easily फिगर में कैपिलरीज दिख रही हैं. पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, पल्मोनरी वेन से लंग्स में, एंड देन दीज आर द फाइन कैपिलरीज, लंग कैपिलरीज फॉर द एक्सचेंज. And
सेम थिंग यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. सो ये सेपरेशन उसी के लिए है, so that oxygenated and deoxygenated blood are not mixed with each other, and this also allows, you know, a highly efficient supply of oxygen to the body. Okay, because आपको पूरा प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है without any mixing, without any toxic product in it. Okay, so therefore there is a high efficient of oxygen to the body, and this double circulation specifically, it is important, it is useful for the animals जिनकी energy demands ज़्यादा होती है. So birds and mammals आप देखोगे तो they have more energy demand because they have to maintain their constant body temperature. बाकी बहुत सारे ऐसे organisms होते हैं ना जो estivation, hibernation, वो particular environment को escape करने के लिए they go in the deep sleep, they become underground. So क्योंकि उनका जो body temperature है वो फ्लक्चुएट होता है सराउंडिंग से, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है. बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में ऐसा नहीं है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना. बाहर कितना भी हीट हो, बाहर कितना भी कोल्ड हो, बट उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है. जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है. सो देयरफॉर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि उनके जो एनर्जी नीड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. सो in those organisms this double circulation is very very important. Okay, then अदर एनिमल्स जिनमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो दे आर रेप्टाइल्स, दे आर थ्री चैम्बर्ड हार्ट. सो दे कैन अलाउ, उनमें थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ओके बिकॉज उनका एनर्जी नीड्स भी इतना नहीं है. फिशेस में आप देखोगे तो ऑन दी अदर एंड दे हैव ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट. ओके, तो उनमें कैसे होता है, द ब्लड इज फर्स्ट पम्प्ड टू द गिल्स. पहले गिल्स में जाएगा, वहां पे जाके ऑक्सीजनेटेड होगा और सीधा रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा. सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार जा रहा है हार्ट में, और उसके बाद सीधा गिल्स में जा रहा है, फिर सीधा बॉडी में जा रहा है, फिर हार्ट में, गिल्स में, बॉडी में. लाइक दैट देयर इज ओनली वन सर्कुलेशन. एक ही बार हो रहा है, सर्कुलेशन ही नहीं है. द ब्लड इज पासिंग ओनली वंस, फ्लोइंग ओनली वंस थ्रू द हार्ट. ओके, देन बाकी के जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हमने देखा बर्ड्स में, मैमल्स में, वी हैव डबल सर्कुलेशन. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये जो इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था ना वर्किंग, तो ये वर्किंग आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर पाओगे. इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हार्ट, और आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और थोड़ा सा ट्विस्टेड करके पूछना होगा तो एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स. ओके, तो इस तरह से आपको दोनों ही जो साइकिल्स हैं वो पता होने चाहिए. दोनों बार कैसे जाता है एक साइकिल में वो पता होना चाहिए. ओके, देन यू हैव सम एडिशनल थिंग. नाउ सी, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली आप देखोगे तो दिस इज रिलेटेड विद द क्लिनिकल, दिस इज रिलेटेड विद द डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू. ब्लड प्रेशर. सो अब क्या होता है कि सी देयर इज अ ब्लड प्रेशर, और ये जो ब्लड प्रेशर है ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, एक टाइप का फोर्स ही है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स. ओके, सो मोस्टली आप देखोगे तो जो एकदम लोअर एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें जो ब्लड है वो इतना प्रेशर से फ्लो नहीं होता है, वो उनके पूरी बॉडी में एक समान फ्लो होता है, बट हमारे में ऐसा नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स, सो जिनका अलग अलग डायमीटर होता है, तो उस रिस्पेक्ट में वी हैव ब्लड प्रेशर ऑल्सो. एक बिल्कुल पतली सी जगह से ब्लड को पास होना है, ठीक है. जैसे कि आप अगर देखोगे तो आप एक बड़ा सा पंप ले रहे हो और एक छोटी सी पतली सी स्ट्रॉ ले रहे हो, ठीक है. अब आप जैसे ही उस पानी अगर उसमें से भी डालोगे ना, तो आप देखोगे कि जो बड़ा सा पंप है उसमें से तो फटाक से पानी चला जाएगा, लेकिन जो एकदम स्ट्रॉ है जिसका डायमीटर बिल्कुल छोटा सा है, तो उसमें से पानी जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है. सो सेम चीज यहाँ पे हमारे साथ भी हो रही है आर्टरीज एंड वेन्स में, जिनका डायमीटर बहुत छोटा है, तो उसकी वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है. ये इंपॉर्टेंट भी है, ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो इट विल मेंटेन, इट विल इंश्योर द कांस्टेंट फ्लो. जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मोस्टली ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये हमारा आर्टरीज और वेन्स मेंटेन करती है. ओके,
So we have a blood pressure. Now what is this blood pressure? अगर आपको definition पूछते हैं तो you have to be very specific, especially जब भी आप 1 markers लिखते हो तो 1 markers में आप कोई भी अपना definition नहीं लिख सकते हो. You have to be very very specific. What is given in the textbook you have to write as it is with the textbook. Okay. So see, the force that blood exerts against the walls of a vessel is called blood pressure. ये इसकी definition है. आप हमेशा stick with the definitions. चाहे ये हो या चाहे कोई भी हो, आपको definition के साथ stick रहना. ठीक है. Now this pressure is greater in arteries than in veins. अब क्या हो जाए क्योंकि प्योर ब्लड जा रहा है. ओके. सो ये जो प्रेशर होगा वो आर्टरीज में ज्यादा होगा, वेन्स में कम होगा. नाउ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, वैसे हम सिस्टोल डायस्टोल बोलते हैं, मेडिकली क्लिनिकल टर्म्स में हम उसको सिस्टोल बोलेंगे. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. क्योंकि वो मस्क्यूलर ऑर्गन है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो ऑब्वियस है. ठीक है. So now let's see what we were discussing. The pressure of the blood inside the artery is high, okay, and this is called as systolic pressure. Then the pressure in the artery during diastole, that is during relaxation, is called as diastolic pressure. So we have two types of pressure, during the contraction, during the relaxation. Systolic and diastolic. अब normal conditions में systolic pressure should be 120 mm of Hg. Hg is your mercury, and diastolic pressure should be 80 mm of Hg. आपने देखा होगा ये सब ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन्स होती हैं, डॉक्टर्स के पास होती हैं, तो वो यहाँ पे अपर आर्म के इधर एक काइंड ऑफ प्लास्टर जैसा बांध देते हैं टाइट, प्रेशर जनरेट करने के लिए. देन पंप करते हैं, उस प्लास्टर को इन्फ्लेट करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं एंड देन दे लीव इट. ओके. सो ये जो आप कॉलम देख रहे हो, एक ये इस तरीके का जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये मर्क्यूरी कॉलम है. एंड ये जो मर्क्यूरी कॉलम है इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखता है जो कि मेजर होता है. नाउअडेज वी हैव डिजिटल दिस बैरोमीटर्स अवेलेबल जो प्रेशर मेजर करते हैं, बट ये जो है वो कन्वेंशनल है, हमेशा से ओल्ड टाइम से यही ज़्यादातर यूज होते हुए आ रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज वन थिंग, द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. सेकेंड थिंग is what is systolic pressure and what is diastolic pressure, and the third and important thing, the normal range of the blood pressure. अब इसमें दोनों बताना है. ओके. एक ही नहीं बताना है, सिस्टोलिक बता के छोड़ दिया, डायस्टोलिक नहीं बताया, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों बताना है. So normal systolic pressure is 120 and diastolic pressure is 80. So how you have to write it out? 120 by 80, 120/80. Okay. And the unit is mm of Hg. Okay. कितना वो रेज होता है, मिलीमीटर्स ऑफ mercury. Okay. So this instrument which is used to measure the blood pressure is called as sphygmomanometer. Okay. ये नाम भी याद रखना है. क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर. देन इसका नॉर्मल रेंज भी याद रखना है. अब जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, बहुत लोगों में दे हैव हाई ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स इट कुड बी 130, 90 इस तरीके से हाई रहता है अगर, तो दैट इंडिकेट्स हाइपरटेंशन. ओके. हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? हाइपर मीन्स मोर, सो दे हैव मोर टेंशन, दे हैव मोर ब्लड प्रेशर. ओके. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे हैव कंस्ट्रिक्शंस इन द आर्टेरियोल, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आर्टेरियोल्स में, और जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है इन द ब्लड फ्लो, and sometimes it can even lead to the rupture of an artery या फिर internal bleeding, ऐसा भी हो सकता है. ओके. सो दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड. हाइपोटेंशन भी होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बट वो थोड़ा कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है. बट दिस हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन. हाई बीपी जिसको हम बोलते हैं, तो हाई बीपी इज नथिंग बट दिस हाइपरटेंशन ओनली. ओके. और भी बहुत सारी कंडीशंस है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है. ओके. देन कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब वजह से भी हाइपरटेंशन होता है. ओके. एंड देन यू हैव सम कॉर्नर क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में अगर पूछना है या फिर कहीं पे 1 मार्क्स को थोड़ा सा टफ कर देना है, तो वी हैव अ कॉर्नर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. सो कॉर्नर क्वेश्चन में आप देखोगे तो यू हैव द ट्यूब्स, दैट इज द ब्लड वेसल्स. ओके. एंड इन दिस ब्लड वेसल्स
वी हैव आर्टरीज जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, एंड जो ब्लड है वो उसमें हाई प्रेशर से फ्लो होता है. वॉल्स आर थिक इलास्टिक वॉल्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्लड फ्लो हो रहा है. सो अगर क्या होगा इसमें, कुछ भी जैसे जिनको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो उनके में क्या होता है, ब्लॉक्स हो जाते हैं, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाता है. सो जो वॉल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं, आर्टरी के जो वॉल्स हैं रिजिड हो जाते हैं. इसलिए आपने सुना होगा कभी भी किसी आपके कोई ऐसे फैमिली में या कोई फ्रेंड्स में दूर दूर में ऐसा आपने सुना होगा कि एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ता है. ओके, सो दैट इज बिकॉज द वॉल्स हैव बिकम वेरी रिजिड. ओके, देन वेन्स आप देखोगे तो दे कैरी द इम्प्योर ब्लड, and uh, they do not have thick walls, because जो blood है it is not under the very high pressure, and instead of that they have walls, because मैंने बताया था आपको आगे भी कि that these walls ensure unidirectional flow of blood. Okay, and then capillaries, of course we know that they form the bridge between the arteries and the veins. Then uh, exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin walls, that is this capillaries, and the capillaries, they join together to form the veins. जो arteries हैं they will get split into the capillaries, capillaries will join together, they'll form the veins. आपका ये जो डायग्राम है ना, आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा. ओके, इस तरह से डायमीटर इसका कैसे इतना छोटा सा डायमीटर बनेगा, कंस्ट्रक्टेड डायमीटर बनेगा. Okay, and then what happens if there is any leakage in the tubes? So we have platelets. Okay, so these platelets will take care that no extra blood is lost from the body. Okay, it will form the clot बनाने लग जाएगा, so that कभी भी अगर कोई इंजरी होती है, इंटरनल इंजरी भी होती है, तो platelets will take care that no extra blood is lost from the body. Okay, और उसके अलावा people should specially keep their blood pressure in check. ओके, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अगर ऐसी कोई कंडीशंस हैं जिससे लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं, तो उनको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए. दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं जेनेटिक और एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो ऑफ कोर्स हम जेनेटिक को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, हम बाकी सब चीज़ों में ध्यान रख सकते हैं, सो दैट ये जो ब्लड प्रेशर है ऐसी कंडीशन नहीं हो. क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी जो आर्टरीज हैं दे विल बर्स्ट. ओके, एंड दिस वुड लीड टू अगेन द लॉस ऑफ ब्लड. So in this we have another topic called as lymph. Okay, so lymph आप देखोगे तो this is also a type of a fluid. It is an extracellular fluid और इसका काम भी होता है transportation का. Okay, so either you call it as lymph or you call it as tissue fluid. इसलिए मैंने बोला extracellular, सेल के बाहर. Okay, tissue fluid. So there are pores. कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, एंड वहां से आप देखोगे तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और द ब्लड सेल्स दे गॉट escape into the intercellular spaces in the tissues, and they will form the tissue fluid or the lymph. Okay, so ये जो lymph है, it is similar to the plasma. Again, this is a corner question. It can be asked, difference between plasma एंड लिम्फ. तो आप इसके डिफरेंस में क्या लिखोगे? लिम्फ सिमिलैरिटी ये है कि इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, बट लिम्फ इज कलरलेस, प्लाज्मा इज स्लाइट येलो इन कलर. इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, प्लाज्मा कंटेन्स मोर प्रोटीन्स. ओके, देन लिम्फ का काम क्या होता है? टू ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज. अब ये जो लिम्फ है ना, ये जो फ्लूइड है, ये कैपिलरीज में जाता है, and then again it goes into the large lymph vessels and they open into the large veins. Okay, and limbs का काम ये भी होता है कि that they carry the digested and absorbed fat from the intestine. Apart from the transport of tissue fluid, the other work of lymph is to carry out the digested and absorbed fat from intestine, and it can also drain some excretory waste products back into the fluid spaces. Okay, so lymph का काम होता है transportation of food,
and also to remove out waste products. Okay, so this is also important fluid. यहाँ तक कोई doubts? Quickly. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, then let us move to our another topic, which is transportation in plants. Okay. Now, same जैसे यहाँ तक हमने देख लिया about human beings, same thing we will see transportation. यहाँ पर थोड़ा सा different होगा क्योंकि जो cells animals में है वो plants में नहीं है, अलग अलग हैं. They have different types of tissues, different types of cells. So, what are the conducting tissues in plants? बताओ क्या कंडक्टिंग टिश्यूज है? ट्रांसपोर्ट किससे होता है प्लांट्स में? Phloem, xylem. जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो दो हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. जाइलम का काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो जाइलम का एक ही काम होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द parts of the plant. Flow of xylem or the flow of water and minerals is always unidirectional. नीचे आपको एक फिगर दिखेगा जिसमें आपको एरोज बनाए हुए हैं. सो रूट से ऊपर की ओर जा रहे हैं. ओके, इट इज नेवर from the leaves to the roots. It is always from the leaves to stem, sorry, from roots to stem to leaves. Okay, like that. So this is unidirectional, only in one direction. Okay, ये भी एक डिफरेंस आएगा आपको. बहुत बार जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं. सो ये यू कैन राइट इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल. फ्लोएम में इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो रिवर्स भी होता है इसमें. ठीक है, सो द फ्लो इज बाई डायरेक्शनल. द फ्लो ऑफ food transport in phloem is bidirectional. Okay, now let us move back to the xylem. क्या क्या है xylem के अंदर? What is present in the xylem? It consists of xylem vessels and tracheids. Okay, दो टाइप के इसमें टिश्यूज है, सेल्स हैं, xylem vessels और tracheids. Now you can see big cylindrical structures हैं, tracheids and vessels. Then water and minerals, they enter the root by diffusion. क्या है diffusion? Water transfers from higher concentration to lower concentration. Yes, it is simply the transfer from high concentration to low concentration. So roots के अंदर ज़्यादा concentration है, soil के अंदर ज़्यादा concentration है और plant roots में कम है, तो soil से roots में जाएगा. Okay. Now, next thing that will happen is due to transpiration. Now, transpiration, you already know, this is a natural phenomenon where there is a loss of water through evaporation in plants. Okay, so अब transpiration में क्या होगा? Leaves में से पानी निकलता जाएगा transpiration में, water vapor में निकलता जाएगा. So this will create a kind of the suction. एक टाइप का force generate करेगा, suction force, and this will promote, this will encourage the upward movement of waters and minerals. है समझ में? इस तरीके से concentration gradient continuously बनता जाएगा, high concentration to low concentration, high concentration to low concentration. So इस तरीके से because of the transpiration pull and the suction force generated, the water will move in the upward direction with the help of xylem vessels and tracheids. ओके, सो बोथ द वेज. आपको जाइलम के बारे में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो. एंड सपोज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट, तो भी आप ये लिख सकते हो. वहां पे आपको ये बताना कंपलसरी रहेगा, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स इज जनरेटेड व्हिच अलाउज द अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Okay, the next one in this segment is phloem. So
So this phloem, it transports food from the leaves to other part of the plant, and this process is called as translocation. एक जगह से दूसरी जगह जाता है, and then जरूरत पड़ने पे, क्योंकि हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा है कि रूट्स में भी फूड स्टोर होता है, स्टेम में भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। सो जरूरत पड़ने पे ये जो फूड है बाद में सप्लाई होता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। सो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और फ्लोएम के अंदर वी हैव सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये जो कंपेनियन सेल्स है ना, वो सीव ट्यूब्स के साथ साथ होते हैं, इसीलिए उनका नाम है कंपेनियन सेल्स। सो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनर्जी, और क्या होगा, ये जितना भी फूड है, ये जो लीव्स है, लीव्स से हर एक पार्ट में जाएगा, एंड इन दिस प्रोसेस ATP is required. Okay, then bring about transport of food. Okay, so this is all set about transport in plants. Xylem and phloem conducting tissues. Then xylem carries out the movement of water and minerals, and phloem prepares the food and later translocates it. Okay, clear है transportation in plants? Yes. Okay, fine. Then let us move to the last topic from this part, that is excretion. Okay, so excretion, as per the definition, it is the process by which the waste products produced during metabolic activities are removed from the body. Okay, अब जैसे हमने इतना सारे इतने जो भी हमने आगे के जो भी प्रोसेसेस देखे, तो उसमें एक चीज हमको ये पता चली कि सेल्स है, साइमल्टेनियसली दीज सेल्स दे आर आल्सो मेकिंग सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको बाहर निकलना कंपलसरी है बॉडी में से, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ दे कीप ऑन accumulating in the body, they become toxic. Okay, they will spread infection in the body, they become toxic, and it can be lethal. The person can also die out. Okay, so for this we have excretion, continuous removal of waste product from the body. अब आप इसमें देखोगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि मोस्टली इनमें जो ये स्किन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है. So the waste products are removed from the cells into the surrounding by simple diffusion, high concentration to low concentration. But multicellular organisms में आप देखोगे तो because they have specialized tissues, so they have also specialized organs to carry out excretion process. Okay, so we will be seeing excretion in humans. मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे knowledge के तौर पे बता दूँ तो different products होते हैं excretion के, depending upon the organisms, किस टाइप के organisms हैं तो उसके accordingly we have different process of excretion. आपको पता होना चाहिए कि हम क्या excrete करते हैं, क्या substances हैं जो कि excrete होते हैं. So mostly देखो, अगर आप fishes देखोगे ना तो fishes में ऐसा होता है कि they excrete ammonia. नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सक्रीशन में, मैं पहले लिख देती हूँ, ज्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. ओके, सो दीज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स दे नीड टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. अब ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है, डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है उनके पास एक्सक्रीशन के लिए. ओके, सो फिशेस बिकॉज दे आर इन द वाटर मीडियम, large amount of water is required, so they excrete out ammonia. उसी तरीके से आप अगर birds और reptiles देखोगे तो these birds and reptiles they excrete out uric acid, okay, in the form of pellets. छोटी छोटी pellets के form में they excrete out their waste products. Okay, because limited water चाहिए इसीलिए. And humans में, आप mammals में देखोगे so we excrete out urea, okay, as a waste product. So ये तीनों अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं.
डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. वाटर कितना अवेलेबल है ये देख के it happens. So moving back to excretion in human beings, it consists of, now what are the parts of excretory system in human beings? So it consists of a pair of kidneys. Pair means two kidneys, pair of ureters. Two ureters, one urinary bladder and an opening called urethra. So each kidney has a number of excretory units called nephrons. Nephrons are the structural and functional unit of respiration. Okay, smallest of all. So they are the structural and functional unit of excretion. Figure आपको दिया हुआ है kidneys bean shaped. Then there is a tube-like structure which is passing out, that is called as urethra. It gets connected to the urinary bladder where urine is stored for some time, and then there is this opening through which the urine is expelled out from the body. So that is urethra. Okay, and this is the entire structure you can see. We have this glomerulus, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. Okay, then यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली जो ब्लड है, ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है दैट गेट्स फिल्टर्ड आउट, यहाँ पे आ जाता है एंड ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी. फिर यहाँ से वी हैव proximal convoluted tubule. Proximal means the top part. Proximal is the top part. So we have the proximal convoluted tubule. We have the loop of Henle. Okay, so यहाँ पे concentrated होता है यूरिन, यहाँ पे concentrated होगा so that ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट नहीं हो. सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है बॉडी में से. सो वो जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे होता है. Then it goes into the distal convoluted tubule. This one, distal means the second part or the last part. यहाँ पे जाएगा. And lastly, collecting tube में mostly there will be absorption of water. Okay, and then finally the concentrated urine is excreted out from the body. So ये इसके different parts हैं of a nephron. इसको पूरे को हम nephron बोलेंगे. Okay, और ये जो nephron है इसके अंदर इस तरह से exchange होगा, excretion होगा. So see, here it is given. Each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule, and it has a fine capillaries. छोटी blood vessels होंगी जिनको हम बोलेंगे glomerulus. So then this Bowman's capsule, it will form एक tubular structure बनाएगा. Proximal convoluted tubule, Henle loop, pin जैसा structure, U-pin structure, and then distal convoluted tubule. And finally एक बड़े से pump में connect होगा जिसको हम बोलेंगे connecting duct. Okay. So whatever is the waste product, renal artery will bring that waste product. Renal again it is the word for kidneys. Okay. So जैसे हमने pulmonary देखा था ना lungs के लिए, वैसे ये renal होता है. renal को use करते हैं kidneys के लिए. Okay, if you want to note down, you can note it down. So this renal artery, it will bring the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, along with the excess water, salts, into the nephron. nephron के अंदर आएगा. जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो फिल्टर हो जाएंगे. वाटर, सॉल्ट, ये सब वापस चला जाएगा बॉडी के अंदर थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड ओनली द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गो इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. Okay, and then later once the urine is formed, it can go into the urinary bladder. अब ये जो भी यूरिन बना है वो ब्लैडर में चला जाएगा. ब्लैडर से when the bladder is filled ना, तो वो क्या करेगा, एक इंडिकेशन देगा, एक सिग्नल देगा कि अब ये यूरिन को बाहर निकलना है बॉडी से. सो यूरेथ्रा है, वो जो ओपनिंग है वो खुल जाएगी एंड द यूरिन इज फ्लोन आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, एंड द ब्यूटी इज ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, ये सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज से थ्रू द ट्यूब्यूल्स. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेंडलेस लूप, ये सब रीअब्सॉर्ब कर देते हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को. ओके, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? Yes, ma'am. No, ma'am. No. Okay, very good. Then let us move to the last topic. Okay, before that, before excretion in plants, we have this connecting thing, artificial kidneys. Okay, so ये भी अगेन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ऐसे पर्सन्स जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है. ओके, सो अब उनमें भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो तो निकालने ही पड़ेंगे.
So see, we have two kidneys, or one kidney is enough to carry out the function of excretion for the lifetime. Mostly अभी भी भले दो किडनीज हैं लेकिन काम एक ही करती है सबसे ज्यादा. Okay, so that is why we have this kidney donation. Okay, कोई देता नहीं अलग बात है लेकिन होता है. Okay, so yes, people can live on one kidney throughout the life. There's absolutely no problem in it. But what happens when both the kidneys are failed? So ऐसे केस में क्या होता है कि excretory products निकल नहीं पाते हैं बॉडी के बाहर. So they have to be dependent on artificial kidneys. Now what are these artificial kidneys? ये हम डिस्कस करेंगे. This process is called as hemodialysis. Now hemo is the word we are using for blood. Of course देखो आपके ब्लड को तो कैसे भी करके फिल्टर करना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ब्लड के अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे और आपका ब्लड तो पूरे बॉडी में पंप आउट हो रहा है, तो पूरे बॉडी में वो टॉक्सिक फैल जाएगा एंड द पर्सन विल डाई विद इन कपल ऑफ मिनट्स. सो दिस शुड नॉट हैपन. For this we have a procedure called hemodialysis or artificial kidneys. Okay, now what happens in them, जिनकी दोनों किडनीज फेल हो जाती है, तो उनमें ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मूव करने के लिए हमारे पास एक सेटअप किया हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनीज. ओके, अब ये जो आर्टिफिशियल किडनीज होती है इसका जो सेटअप होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है कि हम किडनी का जो फंक्शन है वो वी आर डूइंग इट आउटसाइड द बॉडी, बाहर की ओर कर रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम एज इट इज प्रोसीजर कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल आल्सो हैव अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल कहीं पे तो सुना होगा, चलो मैं हिंट दे देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुना होगा, पर होता क्या है वो आपको बताना पड़ेगा. एनीबॉडी? मैम थोड़ा पास होने देता. हाँ, कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देता है, कुछ को नहीं होने देता है ना. तो एक बैरियर लगा देता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को पास होने देगा, कुछ को पास होने नहीं देगा, बेस्ड ऑन द साइज और द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे भी एक हमने आर्टिफिशियल ट्यूब्स लगा दिए हैं जिनके पास एक सेमी परमिएबल लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, और एक टैंक ले लिया है हमने विच इज हैविंग द डायलिसिंग फ्लूइड. अब ये जो फ्लूइड होता है ना, इसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम होता है जो कि हमारे बॉडी प्लाज्मा में होता है. ओके, सो इट विल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ब्लड में है, बट इट विल नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट. अच्छी तरह से याद रखना कि इसका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होता है, उसका प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम होता है ब्लड के थ्रू, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते. अब जैसे ही पेशेंट का ब्लड उसके अंदर पास होगा, ट्यूब के अंदर से जाएगा, सो मैंने बोला था ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, और नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है इस फ्लूइड के अंदर, इस टैंक के अंदर. सो अगेन यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो बॉडी के अंदर देयर वाज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट एंड जो ये फ्लूइड था, जो ये टैंक था, उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा. सो दैट इज हाउ योर बॉडी इज फिल्टरिंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज गोइंग इनटू द टैंक. ओके, सो आप देखोगे इसको मैं अगर क्विकली रीड करूंगी तो वही सब चीजें लिखी हुई हैं. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion, by concentration based on the concentration gradient, and the purified blood is again pumped back into the body of the patient. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दो पंचर्स लगे हुए हैं इस तरह से, एक कैथेटर के थ्रू ऐसे ये पास होता है. ओके, दिस इज फिस्टुला, इसको हम फिस्टुला बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ. सो यहाँ पे दो पंचर्स किए जाते हैं. यहाँ एक में से आपका जो टॉक्सिक ब्लड है वो जाएगा और एक में से फिल्टर होके वापस अंदर जाएगा. सो इस तरह से ये जो प्रोसीजर है इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए रफली अबाउट 4 आवर्स जितना लगता है. ओके, एंड देन स्लोली प्यूरिफाइड ब्लड गोज बैक इनटू द बॉडी. सो ये एक फंक्शन सिमिलर ही है, बिल्कुल सिमिलर है किडनी से, बट क्योंकि ये खुद से नहीं हो रहा है तो हम इसको आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स वी आर डूइंग इट. ओके, सो नॉर्मली आप देखोगे तो हेल्दी एडल्ट में the initial filtrate in the kidneys is about 180 liters. Okay, so ये जो 180 liters है इतना पूरा फिल्ट्रेट होता है डेली, बट एक्चुअल वॉल्यूम आप देखोगे तो इट्स ओनली अ लीटर और समथिंग इन अ डे. ओके, 1 लीटर से ज़्यादा आप यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं करते हो. दैट मीन्स बाकी का जितना भी है वो पूरा फिल्टर होके अब्जॉर्ब होके
बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। आया समझ में? And this has to be continued till the person is alive. Hemodialysis, see, there are also other things available, donor available होते हैं, लेकिन वो मैच होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैच होने के बाद भी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी करो, आप बाहर से कोई ऑर्गन ले रहे हो, किसी और का ऑर्गन ले रहे हो, तो दैट इज फॉरेन टू योर बॉडी, तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं जाके वो हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए। ओके, इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल देयर आर so many complications involved with this donor thing and all. So एक ही प्रोसीजर हमारे पास बचता है, हेमोडायलिसिस। यस, द पर्सन कैन लिव, एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है इसमें, थोड़े से ईयर्स बढ़ जाते हैं इफ द पर्सन इज ऑन हीमोडायलिसिस। सो वीक में 2 से 3 बार ये प्रोसेस कैरी होता है एंड इट टेक्स प्लेस फॉर अबाउट 4 आवर्स जितना ये चलता है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक we have is very short one, excretion in plants. So plants के अंदर आप देखोगे तो the gaseous waste products produced during respiration and photosynthesis are removed through the stomata. Stomata जो होता है, जो हमने देखा था कि leaves पे होता है, and the surface of the leaves, and it is guarded by the 2 guard cells. Stomata bean shape होता है, guard cells उसको guard करते हैं। opening and closing of stomata मदद करता है गैसियस एक्सचेंज में। ओके, सो एक्सेस ऑफ वाटर आप देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी होगा इट विल मूव थ्रू द स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और उसके साथ साथ में देर आर ऑल्सो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर स्टोर्ड इन द लीव्स। सो जैसे ही ये जो लीव है वो ड्राई हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, ये रिमूव हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, देन कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो वैक्यूल्स में भी स्टोर्ड होते हैं। Some waste products are also stored in the gums and resins and also in the old xylem cells. So all of them, they can be removed with the help of stomata. It helps in the gaseous exchange, it helps in the transpiration, as well as it helps in the excretion in plants. Okay, so with this we have come to the end of our chapter.